Tengadang sangma tu kisinok tene ngata Ladakh gang me shamtot parsumina tene nganmai na tene ngata yulina gobe sirka yote no khale kabe tene yuli chi largya luksum ngata chi chagla sikzadan nang gobe zadin skyodat kap innang tene tangada I kula tus nang nyampo tene ngata I Gilja Saman Yonska, Pedna Panchati Rajonska, the Natsoka Tenga, Ladakh Autonomous Hill Development Council, then a consular Rajonska, the Natsoka Tenedaksa, UT Gutin Hale, Sompasana, Tene Ibeka, Tene Daksa Ashistle, Tene Kongma, renowned environmentalist, Tene young Gagar Matab Zambulina, Tene Kongma, social activist, project, Tenema. Ma halashes tene kuyon chenmoyot kane tene tene azuk sikjuk tene somba khong gune tene kalpawri jin nang tene organization jik ka puna bes khayot ka khong ne mangcha tene tribal communities na nyapo chaglat jadat ka Gujarat jara choga Sikkim jara choga Ladakh Spiti jara choga Ladakh jara chok tene yultu mang pane tene azuguna chaglat jadat ni ka devena mangcha tene khong tribal gune azuki kha mangbo chaglat jadat ke khale sompa tene Ladakh senang tene vikalp sangam yutte khone chaglat jaden yote no tene khong I tene ujuk sena I study o khone jatje se azuko Sirka tene khoi gojuga jat tene ngaja ngata laksana yutkane geret sokpa NGOs pe na ngata SLC Snow Leopard Conservancy and Trust tene ngaja NCF Nature Conservation Foundation yang local feature jati yang ngata geret sokpa giteno tenna choga Ladakh Arts and Media lamo ngaja tene sokpa ji khwa tene jepsi chok juste tene halam lo is sang logic nang phachi ngala tene yul nang ko tene yul nang ko yutkane goba changma nang sarpanch nang tene ama sokpa nang tene stakeholder changma nang thukte tene ngata nganme goba gunang dakse goba gunne na gyurja chamji gyong tok tene daksa ngata chagla jatche se nang ko chamji gyurja gyong tok tebe thoga tene khonge ngaje study jospen spelna shame nang study jos kya tene gyamiru na jos kya tena choga changtang gangme na ngaje jospen songpasana mangchat tene I azuk pena ha guru ki tene gobe sirka o tene derong mama po krang gyanang ne gechu choksi kata duling yotik du te tene changme te zat molduki chaw iu lose go sejeno teve kolla tene asis le nang sristile detail mola da chiseno sompa teve tene dubda chiktal da chigiting tene ngata pura document jingata study report ngata ready chache jeno sompa teo ngatang changme tene ibi thokpika I last thokpika tene asisle nangaya changma ngata LG sab nang thukte tena choga dang rang tene ngata I ngata commissioner secretary nang thugata te tene ibi tene dubdas nang chirik dukpo tene presentation full tena choga tene CC sab nang Putuk jese circa inok tena to ngata LBA na nyampo ka ngata I changma report fulte Ladakh sena ta samjik ngata azu stakeholder yotan changma na nyampo thukte tene ibe azu kola gyuschu chese chundus chete no somba tene tebe kola tene daksa asisle mola jachens no nge nyampo tene iwa jun samarak tena ina ta rachi ki dubdas dubte tingne tene maung se nangkua tene Ladakh gangma shamtot parsume tene samjik goba yot te goba gunanya potene mega gathering ngata meeting ka nyan nanga je jakpo ni sumji gi nang ko workshop trap chok siga jache undojin songpange liring ikhane taksa nije sapar gyute nge chapi yu jun samarak ki niya suji ga jiksa nang thore September chok sikina ngaji I sirka guzuk choche se kalte julon lebat na ya media gyute lebat na ya juik gyute lebat na ya kazuk siga lebat nang te jaga nija sangma kamet kyoda jate ika I meeting bina thusa jat chi juna yu tene Ladakh sena tonsa chmujik tene ma khakchan jik che jana gobe sirka manyam se lusi sipi chi kangal bardu dukte ngata kula ta ngatang che jana nganma na I lambardiri ek jete ngata jentki na yu jane dukte bina ko chapik sik ta ngatang youtube gi pasang tai raksa ngata sirke nang ko gyurgya chung nyanchi duga te samang atang samay tugrab jache sepia nija samay nyampo nge iwang juwa phalen sompa izam jigjin tene asis le tene nija siristele tene ngaji I study bina chi top yang chi recommendation de ki yotte tene khone detail mol se thakje che thank you धन्यवाद
करमले जुले मेरा नाम आशीष कोठारी है। मैं कल्पवृक्ष पुणे से मैं काम करता हूँ और लद्दाख में हम लोगों का कई सालों से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है अलग अलग चीज़ों में। तो ये जो हमने स्टडी किया गोवा पे पिछले लगभग 1 साल में, उसमें मुख्य हम लोगों ने क्या पाया वो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। एक तो ये कि पूरे भारत भर में इस तरह की जो एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल गवर्नेंस जो सिस्टम था लगभग ख़त्म होने को आया है, लेकिन लद्दाख, सिक्किम कुछ ऐसी जगह पे अभी भी बचा है। तो लद्दाख में हमने पाया कि गांव में अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सिस्टम। पंचायत आ गया है लेकिन फिर भी गोवा का सिस्टम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी फंक्शंस है अलग अलग, जैसे कि बुआई कब करनी है, सोइंग कब करना है, हार्वेस्टिंग कब करना है, चांगथांग में कब हर्ड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को ले जाना है, अगर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में झगड़ा को कैसे निपटाना है। फिर हर गांव में वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जानवरों का पॉपुलेशन है, इस सब का पूरा रिकॉर्ड रखना। सरकार के साथ जो रिलेशनशिप रखना है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोवा करते हैं, सरपंच से भी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह से सबको बराबर तरीके से मिले। ज़मीन के बारे में अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसको निपटाना। तो इस प्रकार के बहुत सारे सांस्कृतिक भी बहुत फंक्शंस हैं। कई जैसे लोसर का फेस्टिवल है, दूसरे फेस्टिवल्स है, उसको गांव-गांव में जो मनाना है उसका भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवा पे पड़ता है। गोम्पा के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी गोवा के थ्रू है। तो सब मिला के हमें पता चला कि गोवा का रोल अभी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग जो हैं उसको अभी भी सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। वो कहते हैं सरपंच है, ठीक है, बराबर है, विकास के कार्यक्रम आते हैं सरपंच से, लेकिन हमें गोवा में ज़्यादा फेथ है। इसका एक और कारण ये भी है कि गोवा बहुत पुराना सिस्टम है, लोगों का अपना सिस्टम है। हाँ, डोगरा रूल ने उसको मान्यता दी और इंडिपेंडेंस के बाद लंबरदार एक्ट में भी उसको रिकग्निशन मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हमारा अपना सिस्टम है। पंचायत तो बाहर से आया है, गोवा का हमारा अपना सिस्टम है। और उसमें ये भी कहते हैं कि पंचायत जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो पॉलिटिकल फंक्शन बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें आ जाती है, इलेक्शन होते हैं। गोवा जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए भी हमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। इस सब को होते हुए भी हमें ये लगा कि गोवा का रोल का उतना रिकग्निशन, उतनी मान्यता सरकार द्वारा अभी नहीं है। लंबादारी एक्ट में जो कुछ फंक्शंस हैं वो तो हैं, लेकिन ये बाकी सारे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गोवा रोल प्ले कर रही है वो उसकी मान्यता अभी नहीं है और कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है कि गोवा सरपंच, हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किसके क्या फंक्शंस हैं, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो एक्चुअली क्लैरिटी कम है। दूसरा ये भी हमने पाया कि यद्यपि पहले गोवा का रोल बहुत लोग चाहते थे कि मैं गोवा बनूं, अब वो थोड़ा सा बदल रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हमारे लिए एक बहुत मतलब बोझ बन गया है, क्योंकि मेरा अपना काम भी है, ऊपर से गांव का काम भी करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि गांव के लोग भी बहुत मदद करते थे कि आपको हमने लाइफ स्टॉक दे दिया, या आपकी भेड़ बकरी है तो हम चराने के लिए ले जाएंगे, या जौ दिया, या अलग अलग प्रकार से जो है गोवा को मान्यता मतलब गाँव के लोग सहायता करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया है और सरकार जो एक देती है 1500 रुपये पर महीने कुछ देती है, उससे कुछ खास बनता नहीं है, क्योंकि उनका उतना खर्चा ही हो जाता है। एक बार भी अगर लेह में मीटिंग के लिए बुला दिया तो उतना खर्चा लगभग 500-600 रुपये हो गया। किसी ने यहाँ से सरकार ने कोई नई स्कीम डाली तो गोवा सब पूरे गांव में बताएगा जब तक फ़ोन पे, तो उसका उतना खर्चा हो जाएगा फ़ोन का। तो वो कहते हैं कि इससे हमें बनता नहीं है, इसलिए अब गोवा का रोल ज़्यादा लोग प्ले करना नहीं चाह रहे हैं। तो वो पहले जो एक 4 साल 5 साल, कहीं जगह पे तो 20-30 साल के लिए गोवा रहते थे, अब 1-1 साल में जो है घर घर में वो रोटेशन सिस्टम आ गया है कि हर घर को एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको देना ही करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुल मिला के, हाँ, दूसरा ये भी हमने पाया कि जहाँ पे पारंपरिक आजीविका, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थोड़ी कम हो गई हैं, वहाँ पे भी कुछ गोवा का रोल कम हो गया। जैसे ले टाउन में, ले और इसके आसपास, क्योंकि ज़मीन का उतना वो नहीं रहा है, भेड़ बकरी रखने का, जानवर रखने का उतना नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा रोल कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक और ट्रेडिशनल वीकनेस इसमें हमें लगा कि ज़्यादातर गोवा जो है मर्द होते हैं और बुज़ुर्ग मर्द, ओल्डर मैन, महिला बहुत कम। कुछ जैसे चुमाथांग में 1-2 महिला गोवा मिली, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उनके घर में जो मर्द थे वो लेह में थे, तो इसलिए उनको बनना पड़ा। तो महिला कम और युवा लोग भी कम, तो इसमें भी कुछ फेरबदल लाने की ज़रूरत है। तो इन सबको मिला के फिर हमने एक पूरा रिकमेंडेशंस का सेट दिया है सरकार को, अभी और आगे देने जा रहे हैं। तो वो जो हमारे सुझाव है, रिकमेंडेशंस है,
उसके बारे में सृष्टि थोड़ा बता देंगे। ठीक है, सभी को झूले। मैं सृष्टि वाजपेयी, मैं भी कल्पवृक्ष संस्था के साथ काम करती हूँ। तो जो कर्मालय और आशीष ले ने शेयर किया उससे हमारी कुछ की रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो ये कि गोबा का रोल, क्योंकि लोगों के अभी भी लोग उसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से कुछ सोशल या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं। सोशल में ये कि जिस तरीके के भी कोई फंक्शंस होते हैं सरकार ऑर्गेनाइज करती है, उनमें गोबास को रिकग्निशन दिया जाए, जैसे वेल परफॉर्मिंग गोबा हुआ या ऐसा कुछ कि अगर गोबा कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको रिकग्नाइज करें। दूसरा ये कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कई लोगों ने हमसे ये बताया था कि अगर वो पंचायत सरपंच के साथ जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया जाता है, लेकिन गोबा के एक्सपेंसेस को रीइंबर्स नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट जो भी सरकारी काम गोबा कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स किया जाए, और अगर सैलरी उनकी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है तो वो बढ़ाई जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो हमारी हिल काउंसिल की एक्ट है और जो पंचायत एक्ट है उसमें कहीं पे भी गोबा का मेंशन नहीं है। सो एक क्लियरर लाइन ऑफ सेट ऑफ रूल्स कि गोबा का क्या फंक्शंस हैं, उसके वो फंक्शंस पंचायत, सरपंच, हिल काउंसिल, काउंसलर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अब कैसे फिट होते हैं। लद्दाख विजन 2030 में गोबा के स्ट्रेंथनिंग की तो बात की गई है, लेकिन अभी तक उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाए गए। तो हमारा एक ये भी रिकमेंडेशन है कि ऐसा होना चाहिए। हमें ये भी लगता है कि गोबाओं की आवाज़ को साथ में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो गोबा लेवल, एक लद्दाख लेवल एसोसिएशन गोबा का होना ज़रूरी है, जो सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त करे। वैसे इनफॉर्मली खारू में जैसे एक एसोसिएशन है और लोग मिलते भी हैं, पर इसका एक सरकार द्वारा उसका एफिलिएशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमें लगता है कि जो लद्दाख में बहुत समय से 6 शेड्यूल के बारे में और 5th शेड्यूल की जो एक डिमांड रही है, वो गोबा के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी रहेगा। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग और उसका रिकग्निशन, गोबा की रिकग्निशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस की रिकग्निशन के लिए भी ज़रूरी है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो गांव के लेवल पे थिम्स होते हैं, लोकल कस्टम्स होते हैं, वो समय के साथ थोड़ा हमें ऐसा लगा इवॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि पर्यावरण बदलाव हो रहा है या वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, इस तरह की चीज़ों पे लोगों ने अभी अपने थिम्स को रिवाइव नहीं किया। तो ज़रूरी है कि ऑल्सो गोबा और कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय के लेवल पे इन पे थोड़ी और चर्चा हो। और हमें लगता है कि इन सारे इंसेंटिव्स की वजह से कुछ और महिलाएं, यंग लोग शायद गोबा बनने में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि इसमें थोड़ा रिकग्निशन रहेगा। और लास्ट एस्पेक्ट ये है कि 2017 में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें गोबा की एज को 60 साल के लिए कर दिया गया है। जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि 60 साल की एज सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनली गोबा एक ऐसा इंसान रहा है जिसको गांव के बारे में बहुत पता होता है। तो 60 साल एक सही उम्र नहीं है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग गांव से बाहर काम कर रहे होते हैं, तो जब वो फ्री होंगे, रिटायर होंगे, तभी वो गांव में वापस जाकर गांव में पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस वजह से वो ये 60 साल की रिकमेंडेशन से सही नहीं है। तो हमारी भी यही रिकमेंडेशन है कि इसका बदलाव हो, तो करीबन 65 साल इसका उम्र की जाए। तो ये हमारी कुछ की रिकमेंडेशंस थी जो हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब को और डीसी साहब को भी ब्रीफली बताए हैं। एंड वी होप कि आप मीडिया द्वारा ऑल्सो ये थोड़ा बाहर जा सके और स्पेशली गोबाओं तक पहुंच सके, तो थोड़ा उनका कलेक्टिव आवाज़ पे आ सके।